Have you done the process graph with me earlier? Any of you? No. No. No, ma'am. No, Okay, ma'am. okay. So we'll be doing it in depth today. अच्छे से समझाऊंगी. There is one graph which comes in the IELTS, that is a process graph. Process graph जो है ना, what exactly is a process? A process is a series of actions or steps taken in order to achieve a particular end. So that is basically a process, right? There are two types of processes. One is a natural process and one is a man-made or industrial process. Okay. In the natural process, like water cycle, carbon cycle, nitrogen cycle, life cycle of a butterfly, mosquito, all these are natural processes. Okay. And man-made processes, like when human or machine intervention is there and something is made. Okay. So we in the processes you have to learn two types of vocabulary. One is the vocabulary of sequencing and second is the vocabulary of the second is the passive voice. Okay, that is sort of grammar, you can say. Vocabulary of sequencing and grammar. Sequencing क्या होता है? First, second, third, fourth. Okay, next, after that. So in the next step, in the subsequent step, eventually, finally, this is the vocabulary of sequencing. एक तो आपको ये आनी चाहिए, दूसरा आपको इसमें पैसिव वॉइस आना चाहिए. एंड बिलीव मी, पैसिव वॉइस अगर आपकी सॉलिड हो गई, अगर प्रोसेस ग्राफ आ गया, आपने पैसिव सही लगाई, ग्राफ 8 पे जाएगा, 8 प्लस पे जाएगा, कम आ ही नहीं सकते. पैसिव वॉइस बहुत इजी है और सिर्फ ग्राफ्स में नहीं चाहिए, इट इज नीडेड इन द एसेज ऑल्सो. Okay, you really need the passive in the essays also, and one or two sentences of passive add to your range of grammar. Okay, बहुत ज्यादा passive नहीं डालना, but at least one or two sentences of passive. और सिर्फ process graph में नहीं, हर तरह के graph में आपको one or two sentences of passive करेक्टली डालने आने चाहिए, ताकि आपकी रेंज ऑफ ग्रामर शो हो जाए और आपका बैंड स्कोर अच्छा हो जाए. ठीक है. सो पैसिव यू हैव टू डू रियली वेल. ओके. Yes. हाँ. मैम आपने रिकॉर्डिंग ऑन किया? यस यस. Oh, Thank you for reminding. But yes, yeah. I've done the recording also. Okay. Mm. So this is an example of a natural process. Okay. From the seed, young plant emerges, then the young plant grows into a mature plant, then there is a flower, and then there is the fruit. Okay. This is a natural process. Okay. And after that, then this is the example of a man-made process. From the olive tree we get the olive oil and the extra virgin olive oil. Okay, so this is a man-made process. These are two examples of processes: man-made process and natural process. Okay, now we come to the vocabulary of sequencing. To describe the sequence or the order in which the steps take place, some examples are: to begin, in the first, in the initial step, in the first stage, in the initial stage. So like that you can say anything. To begin with. Okay, to begin with. Then we have then, next, after that, in the next step, or in the next stage, in the subsequent step, subsequently, after this stage is complete, after this step is complete. This step involves, before this step, at the same time, meanwhile. Meanwhile means जब कुछ और हो रहा है, साथ साथ कुछ हो रहा है, तो हम meanwhile लिख सकते हैं. ठीक है. And finally, in the final step, in the final stage, eventually, the last step involves, at the end of the process. तो ये सारा आपको, this is the vocabulary of sequencing. थोड़ी सी प्रैक्टिस है, 4-5 प्रोसेस ग्राफ लिख लो, मोर देन इनफ है आपको एग्जाम के लिए. बस इतना ही बहुत है. अगर आपकी इसमें पैसिव वॉइस में कोई गलती नहीं आए, सीक्वेंसिंग आपकी सही रहे, प्रोसेस विल रियली फेच यू गुड बैंड. ठीक है. नेक्स्ट वी कम टू द पैसिव वॉइस. जो पैसिव वॉइस है ना, जो इंग्लिश में सेंटेंस का सिंटेक्स है, आई थिंक आई विल ओपन अप अ न्यू फाइल एंड
ओके, तो इसमें मैं आपको ना पैसिव वॉइस कराती हूँ, ब्लैंक इस पे आपके सामने लिख के, ठीक है। कैन यू सी द ब्लैंक फाइल हियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सो द पैसिव, तो जो इंग्लिश में सेंटेंस सिंटेक्स है ना, दैट इज सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. So what does this mean? Subject, verb, object. When we write any sentence, okay, we say s- Sunita bakes cakes. Okay, तो इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? Sunita. Sunita. हाँ, जो कुछ कर रहा है ना कोई, वो सब्जेक्ट होता है, ठीक है। केक्स क्या है? Object. Object. और बेक्स क्या है? वर्ब, Verb. ठीक है। तो ये हो गया इंग्लिश में सेंटेंस का सिंटेक्स। हिंदी पंजाबी में सेंटेंस सिंटेक्स होता है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। हम बोलते हैं सुनीता केक बनाती है, तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, सुनीता केक बनाती है। तो जब आप ट्रांसलेशन करो ये देख लेना, हिंदी पंजाबी में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब होता है, बट इंग्लिश में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। सो ट्रांसलेशन के टाइम आपको हेल्प हो जाएगी। अब ये है सुनीता बेक्स केक्स। अब हमें पैसिव वॉइस बनानी है इसकी। पहले तो मुझे ये बताओ कि पैसिव के बिना क्यों नहीं सरता, व्हाई डू वी हैव टू मेक द पैसिव, ठीक है, बताओ पैसिव क्यों बनानी है हमें? मैम क्योंकि हमने Present. क्यों बनानी है? क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमने दिखाना वो बात है, पर जहाँ है पे पे वो सब्जेक्ट नहीं होता। हमें पैसिव वहां बनानी होती है जहाँ पे जो काम हो रहा है वो काम करने वाले से ज्यादा इम्पोर्टेंट हो, ठीक है। Where we have to use the passive, where the work being done is more important than the person doing the work, ठीक है, there we have to use the passive. ओके, तो मैं ना, नोरा मेरी गोदी में बैठ गई है आके, ओके। तो ये यहाँ पे पैसिव बनाना होता है, where the work being done is more important than the person doing the work. अब केक बन रहे हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि केक बन रहे हैं, आपको केक खाने से मतलब है, कौन बना रहा है इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। तो हमने इसका पैसिव बनाना है, ठीक है। सुनीता बेक्स केक्स, तो पैसिव में क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को उठा के आगे ले आते हैं, ठीक है। सो हम लिखेंगे केक्स, ठीक है, फिर एंड में चला जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है, सुनीता, ओके। ये हो गया ये हो गया हमारा और सब्जेक्ट एंड में चला गया। अब बीच में ये जो वर्ब है ना, इसको हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना है ताकि पैसिव बन जाए। अब जो बीच वाला बेक्स है ये वर्ब है, इसकी जगह हम क्या करेंगे, वर्ब में ना बी की फॉर्म लगानी है, प्लस 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 वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी Past है, ठीक है। participle. अच्छा, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये जो बी है ना, ये जो बी है, थैंक गॉड ये अकेला वर्ब है पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में जिसकी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर अलग है, ठीक है। इसकी प्रेजेंट क्या है, इज, Art. इज, एम, आर, Art. ठीक है। और इसकी पास्ट टेंस क्या है, Was were. वॉज, वर। और इसका फ्यूचर क्या है, विल बी, ठीक है। अब जो बी है ना, बी को मैं हिंदी में आपको समझाती हूँ। बी का मतलब है होना, होना, कुछ भी होना। अब देखो बी, अब मैं ही इज की हिंदी क्या बनेगी, वो है, वो है
ठीक है होना आ गया ना, इज बी की फॉर्म, ठीक है। आई एम की हिंदी क्या बनेगी? मैं हूँ। मैं हूँ, होना, वो हैं, उसकी हिंदी क्या बनेगी? सॉरी, दे आर, हाँ और हाँ, तो वो है, तो वो होना, है। ठीक है, होना समझ आ गया, बी मीन्स होना, ठीक है। शेक्सपियर ने 400 साल पहले लिखा था टू बी और नॉट टू बी, होना या नहीं होना, उसका एक वर्क है, ठीक है। तो बी मीन्स होना, ठीक है, ये समझ आ गया। अब हमें यहाँ पे बी की फॉर्म लगानी है, अब हमें यहाँ पे बी की फॉर्म लगानी है, केक्स, और यहाँ पे बेक्स है, ठीक है। अब ये केक्स है प्लूरल, प्लूरल के साथ क्योंकि बेक्स प्रेजेंट टेंस है, तो बी की प्रेजेंट टेंस 3 है ना, इनमें से कोई एक चीज आएगी, या इज आएगा या एम या आर। अब आर। केक्स क्या है? प्लूरल, आर। तो यहाँ पे आर आ जाएगा, ठीक है, केक्स आर। अब मुझे बताओ, बेक। बेक का थर्ड फॉर्म क्या है? बेक। बेक का थर्ड फॉर्म क्या है? बेक्ड, बेक्ड बेक्ड, केक्स आर बेक्ड बाय सुनीता, ठीक है। एंड सब्जेक्ट इतना जरूरी भी नहीं होता, पर आपको पैसिव वॉइस समझ आ गई बिल्कुल? यस मैम। ओके, चलो निराली, टीचर्स यस मैम। टीच स्टूडेंट्स, इसमें बताओ सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है? टीचर्स सब्जेक्ट है, टीच वर्ब है और स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट है। ओके, पल्लवी इसका पैसिव बनाओ, शैलजा पैसिव बनाओ। अच्छा पल्लवी आ गई, हाँ हाँ बताओ पैसिव। टीचर्स टीच स्टूडेंट्स, Students are taught Students by are teachers. टीचर्स। थोड़ी सी गलती करी है शैलजा, पकड़ी किसी ने? When students स्टूडेंट्स 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 आर, और स्टूडेंट्स are. स्टूडेंट्स प्लूरल भी नहीं बोला, ठीक है, स्टूडेंट बोल दिया, तो वो गलत हो जाएगा। आपको अगर एग्जामिनर प्लूरल में कुछ दे रहा है तो आपको प्लूरल में करना है, ठीक है, ओके। ओके मैम। हाँ ओके, शैलजा, यस मैम। रैट्स, रैट्स, रैट्स चेज, नहीं, रैट्स, कैट्स चेज रैट्स, ओके, पैसिव करो। cat chase rats. Rats are हम्म, chased by cats. वेरी गुड, ओके। मौलिक, बर्ड्स ईट वर्म्स, पैसिव करो। worms are eaten by birds. वेरी गुड, ओके। निशा, आई टीच इंग्लिश, English is taught by me. वेरी गुड, ओके। एलिश, आई लर्न, आई एम लर्निंग जर्मन, पैसिव करो। German is being learned by me. वेरी गुड, जर्मन इज बीइंग Being लर्नड बाय मी, वेरी गुड, ओके। मैम बीइंग क्यों आया? मैम being हाँ, क्यों है? क्योंकि क्योंकि वो मैंने कॉन्टिन्यूअस टेंस का बोला ना उसको, आई एम लर्निंग जर्मन, जर्मन इज बीइंग लर्न्ड बाय मी, उसने बिल्कुल सही बनाया, ठीक है, हाँ ओके। गवर्नमेंट मेक्स लॉज, अनमोल शर्मा, ओके। अरनीत, गवर्नमेंट मेक्स लॉज, Laws are made by government. वेरी गुड, वेरी गुड। गोपी, uh, he uh, he loves ice cream, Sorry ma'am, I he do not loves ice understand. cream, Ice he, cream, okay. आप इसमें बताओ सब्जेक्ट क्या है? ही लव्स आइसक्रीम, 3 वर्ड्स है ना गोपी, सब्जेक्ट क्या है? Yes, yes ma'am. He है, ही he सब्जेक्ट है, ठीक है, subject है, हाँ। या आइसक्रीम क्या है? आइसक्रीम ऑब्जेक्ट है, और लव्स क्या है?
लव वर्ब है. वर्ब है. अब आप ऑब्जेक्ट को आगे ले आओ, बोलो. आइसक्रीम. हाँ, आइसक्रीम सिंगुलर है ना. या आइसक्रीम इज हाँ, वेरी गुड. आइसक्रीम इज. आइसक्रीम इज हाँ, loved. वेरी गुड. आइसक्रीम इज loved by he. बाय हिम. ही का हिम हो जाता है. और लव का Yeah, ma'am. थर्ड फॉर्म क्या है? लव का थर्ड फॉर्म क्या है? लव ही है मैम. नहीं, लव. लव्ड. तो आज आपने क्या करना है? इर्रेगुलर वर्ब्स थर्ड फॉर्म सबके कर लेने हैं. ठीक है. ओके मैम. मतलब इरेगुलर वर्ब्स के ना फॉर्म सारे याद करने हैं, क्योंकि रेगुलर के तो सिर्फ ईडी लगना है. लव, लव्ड, लव्ड. और जो इरेगुलर है उनमें ईडी नहीं लगता, उनमें उनमें इरेगुलर होते हैं. ठीक है. तो आपको ये सारे आज इरेगुलर वर्ब्स है, इनको याद करना है सब बच्चों को. ठीक है. Ma'am, हाँ, what's the difference between regular and irregular verbs? रेगुलर वर्ब वो होते हैं ना जिनमें ईडी लग जाता है. जैसे लव रेगुलर है, लव, लव्ड, लव्ड. डी लगा या ईडी लगा. और गो, वेंट, गॉन, ये क्या है? इरेगुलर. Irregular. ठीक है. बाय, बॉट, बॉट. ठीक है. Okay. ओके. अच्छा चलो, अभी मैं और सब बच्चों से एक छोटा छोटा ये पैसिव वॉइस आपकी फर्म करा दूं अच्छे से. गुरप्रीत राठौर, ही बॉट अ सेल फोन. करो पैसिव. He bought a cell phone. Cell phone. Cell phone. He bought a cell phone. हाँ, ही बॉट अ सेल फोन. A cell phone. हाँ, Bought verb the second form लग गया. Was हाँ, bought by him. वेरी गुड, वेरी गुड. अच्छा, अभी आप पता है क्या कर रहे हो? अभी आप नई नई गाड़ी चलानी सीख रहे हो. तो जब आपको अभी आपको जब गियर चेंज करना पड़ रहा है ना, आपको सोचना पड़ रहा है फर्स्ट लगना है, सेकंड लगना है, थर्ड लगना है कि फोर्थ लगना है. अब जब ये गियर ऑटोमेटिकली चेंज होने लग जाएंगे ना, आपको सोचना नहीं पड़ेगा. ठीक है. जब मैं मानूंगी कि आपकी पैसिव वॉइस फर्म हो गई. समझ गए गुरप्रीत? Okay, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, ठीक है. तो इस Yes, ma'am. पैसिव वॉइस को फर्म करना है आपने. ठीक है. Okay, ma'am. हाँ, ओके. अंकित, the police caught the thief. The police caught the thief. Ankit is not here, I think. May I, Okay. ma'am? बेटे नए बच्चों को चांस देने दो ना. I will. हाँ, Okay. श्योर. हाँ, बोलो. The thief was caught by police. हाँ, the police caught the thief. The thief was caught by the police. ठीक है. Okay. She punished her brother. Let me ask somebody. She punished her brother. Himmatveer. Brother is punished by her sister. नहीं, गलत कर रहे हो. She punished her brother. Her brother Her brother was was punished by her. by her. ठीक है बेटे. हिम्मत, समझ आ गया? Yes, ma'am. ओके. अब दोबारा करो. She punishes her brother. करो. She punishes her brother. Her brother is punished by her. Very good. Okay. They pluck olives from the olive trees. अब यहाँ पे they important नहीं है, इसको omit कर देना. अब पैसिव बनाओ. रीना, they pluck olives from olive trees. Only were plucked by them from olive trees. आपने वर क्यों लगाया है? They pluck olives है. मैंने बोला pluck तो फर्स्ट फॉर्म है. Okay. They pluck olives from olive trees. Olive trees.
olives were plucked by them. वर क्यों लगा रहे हो? They pluck olives from olive trees. Olives But plucked. olives Olives are plucked from olive tree. हाँ, olives are plucked from olive trees. By them की जरूरत ही नहीं है क्योंकि important ही नहीं है. ठीक है? You can omit the subject in the passive. ठीक है? हाँ, okay. only pluck first form, ma'am. हाँ, अब बताओ रीना, आपकी कंफ्यूजन ठीक करो. हाँ जी, बोलो. Yes, ma'am. You actually, thought that you were speaking a plucked second form. नहीं नहीं, मैंने बोला they pluck olives from the olive trees. I'm sorry, because of that हाँ, I okay. used. Okay, no problem, no problem. Okay, Manju. The teachers rebuked the students. Ma'am, can you please repeat? The teachers rebuked the students. The students. Students बोला मैम आपने? हाँ. The students are rebuked by the teachers. अच्छा, मुझे बताओ, आपने मेरा सेंटेंस the teachers rebuked the students, तो मैंने प्रेजेंट में बोला कि पास्ट में बोला? पास्ट में बोला या was आएगा. Was आएगा कि वर आएगा? वर आएगा ना. स्टूडेंट्स है, वर okay, yes, वर आएगा. आएगा. ठीक है, ओके. Ma'am, राम rebuke का spent, हाँ, rebuked मतलब झिड़कियां मारी. ओके. अच्छा चलो, राम spends 1,000 rupees every month. Okay, Ram spends 1,000 rupees every month. Nikhil Patel. Yes, ma'am. हाँ. Rupees. Ram spends 1,000 rupees every month. Ma'am, I will try. No, Nikhil. 1,000 rupees हाँ. were spent by एक Ram. मिनट. वर क्यों लगाया निखिल? राम spends है. Spends present है. तो बी की present form क्या है? Is MR. उनमें से क्या लगेगा? 1,000 rupees क्या है? Plural है. तो plural क्या लगेगा? R. चलो अब करो ठीक. Ram spends 1,000 rupees every month. बोलो. 1,000 rupees are हाँ. R spends. spent. हाँ, थर्ड फॉर्म क्या है spend की? Spend. Okay. By Ram every month. 1,000 rupees are spent by Ram every month. अच्छा, चलो अभी मैं नेक्स्ट पूछ रही हूँ. अभी सब बच्चों ने टर्न नहीं ना ली. रोहतास, राम spent 100 rupees. इसकी करो पैसे. मैम may I? Ma'am, may हाँ बोलो चलो. 100 rupees was spent by Ram. आपने was spent क्यों बोला है? रुपीस प्लूरल नहीं लग रहा आपको? Were spent. हाँ, ठीक है. Okay. हाँ, अभी आपके सबके पैसिव वॉइस की फंडामेंटल क्लियर हो गया? Yes, ma'am. Yes. अच्छे से. Yes, ma'am. अच्छा, जब आप पैसिव बनाओगे ग्राफ में तो आप ना ब्रेकफास्ट या लंच करके बैठना ग्राफ लिखने. अच्छा, क्योंकि ये इज खा जाते हैं बच्चे. इज आर थर्ड फॉर्म के पहले आना है. तो पहले अगर आपने अच्छे से पेट भर के भोजन करके शुरू करा ना, फिर खाओगे नहीं. ठीक है. हाँ, ठीक है. आई टेल माय स्टूडेंट्स, अच्छे से खाना खा के लिखना ग्राफ को पैसिव वॉइस में. ठीक है. आप बी की फॉर्म खा जाते हो. बी की फॉर्म खाने से सारा सेंटेंस गलत हो जाता है. ठीक है. और सीधा 7:30 8 से ग्राफ पहुंच जाता है 5:30 पे. ठीक है. तो आपको बी की फॉर्म भूलनी नहीं है लगानी. समझ आ गया सबको? Okay, ma'am. ओके. अब जो है ना, मैं इसकी न्यूज शेयर करूं. अच्छा, अब जो पैसिव वॉइस है ये मैंने आपको समझा दिया सारा. सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है. रवि प्लेज फुटबॉल है तो हम इसका करेंगे फुटबॉल इज प्लेड बाय रवि. ठीक है. प्ले चेंज हो गया इज प्लेड में. ये आपको समझ आ गया? अब जो हम ग्राफ लिखते हैं ना, प्रोसेस, इसको कैसे लिखते हैं?
हम पैराफ्रेज करते हैं इंट्रोडक्शन में, जो टास्क है उसको पैराफ्रेज कर देते हैं। ओवरव्यू में एक सेंटेंस बना देते हैं नंबर ऑफ स्टेप्स का, और फिर फर्स्ट स्टेप और लास्ट स्टेप का दूसरा सेंटेंस बना देते हैं। 2 सेंटेंस ऐसे बन जाते हैं ओवरव्यू के। ठीक है, अगर अगर आपकी इंग्लिश पे होल्ड अच्छी है तो आप ये दोनों सेंटेंसेस को कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी बना सकते हो। ओवरऑल इट इज क्लियर दैट द प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ 7 स्टेप्स, कॉमा, फ्रॉम द इनिशियल कैचिंग ऑफ फिश टू द फाइनल सेल टू द सुपरमार्केट। ठीक है, ये फ्रॉम करके यहाँ 2 सेंटेंस बनाने हो, कैसे बनाओगे? इट इज क्लियर दैट द प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ 7 स्टेप्स, फुल स्टॉप। द प्रोसेस बिगिंस विद द कैचिंग ऑफ फिश एंड एंड्स विद द सेल इनटू द सुपरमार्केट्स। ये समझ आ गया आपको 2 सेंटेंस और 1 सेंटेंस का फंडा? अगर नहीं पता चला तो मैं रिपीट कर सकती हूँ, आप बोलो तो सही। समझ में आ गया। आ मैम गया। एक बार रिपीट कर देना। ओके, अगर आपने ओवरव्यू में ना 1 सेंटेंस बनाना है तो आप नंबर ऑफ स्टेप्स का लिखोगे। ओवरऑल इट इज क्लियर दैट द प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ 5 स्टेप्स। नंबर ऑफ स्टेप्स हो गए? ठीक ओके। है, फिर आप कॉमा Yes. डालोगे और लिखोगे बिगिनिंग विद द इनिशियल कैचिंग ऑफ फिश टू द फाइनल सेल इन द सुपरमार्केट्स। ओके मैम। अगर आपने 2 सेंटेंस बनाने हैं जो इजी हैं बनाने और उसमें गलती का स्कोप कम है, तो आप लिखोगे ओवरऑल, कॉमा, इट इज क्लियर दैट द प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ 5 स्टेप्स, फुल स्टॉप। It begins with the initial catch. It begins with the catching of fish. Initial दोबारा नहीं लिखना. It begins with the catching of fish and ends with the sale of fish in the supermarkets. ओके मैम। 2 सेंटेंस हो गए, ठीक है? ओके, अब ये है आपके सामने एक ग्राफ, ठीक है? अब हैंड पिकिंग है, मल्टी स्टेज प्रोडक्शन ऑफ पियर्स एज कैन फ्रूट। पियर्स होती नाशपाती, नाक, ठीक है? इनको कैन करने का प्रोसेस है, ठीक है? मल्टी स्टेज प्रोडक्शन ऑफ पियर्स एज कैन फ्रूट्स। ये आपके पास आ गया एक ग्राफ। आप देखो इसमें कितने स्टेप्स हैं टोटल। ट्रांसपोर्टिंग, हैंड पिकिंग फर्स्ट स्टेप, ट्रांसपोर्टिंग दूसरा स्टेप, वॉशिंग थर्ड, क्वालिटी मम्मी चेकिंग ये मैन-मेड प्रोसेस है। है। ये हाँ, मैन-मेड है प्रोसेस। मैं अच्छा मुझे बताओ कि जो ऊपर नाशपाती लगी है पेड़ पे, वो कैन के अंदर ऑटोमेटिकली चली जाएगी? नहीं। तो फिर मैनमेड ही हुआ ना, ठीक है? हाँ, बड़ा इजी होता है इसको जज करना। अब वाटर साइकिल आपको आ जाए कि समुद्रों से पानी इवेपोरेट हो रहा है, ऊपर बादल बन रहे हैं, फिर बारिश के वे में नीचे गिर रहा है, तो इसको कोई मैन कर रहा है कि अपने आप हो रहा है? ये नेचुरल प्रोसेस है मैम। हाँ, वो अपने आप हो रहा है, वो नेचुरल है, ठीक है? समझ आ गया मुझे? मैनमेड प्रोसेस यस है। मैम। ओके, टोटल स्टेप्स कितने हैं इसमें? दिख रहे हैं वैसे ही, 14 14 स्टेप्स है। फ्रॉम द इनिशियल व्हाट हैंड पिकिंग टू टू द डिस्पैच। फाइनल डिस्पैच, ठीक है? कितना इजी है ना? इजी अगर ओवरव्यू समझ आ गया कैसे बनाना है किसी भी प्रोसेस का? यस। हाँ, कितना इजी है। देखो मेथड्स निकालने हैं अभी, है। आई रियली कमेंड माय सन फॉर दैट कि उसने ना मतलब इजी मेथड है। वी आर नॉट फोकसिंग ऑन 9 में से 9 बैंड का ग्राफ, बट वी आर फोकसिंग ऑन ए ग्राफ जो आप 20 की जगह 15 मिनट में लिख लोगे और 7 बैंड प्लस ले आओगे, ठीक है? और इजी लगेगा आपको, और आप सीख सकते हो और आप लिख सकते हो, ठीक है? ये सब ये बात है इम्पोर्टेंट, ठीक है? चलो अब नेक्स्ट देखो, इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, इंट्रोडक्शन कैसे लिखनी है। 2 सेंटेंस हम यूजुअली यूज कर सकते हैं इंट्रोडक्शन। ओवरऑल लिखने में तो हमने बता दिया, ओवरऑल किसने बताया? 2 sentences that can be used to write the overall. The process illustrates how ये इंट्रोडक्शन है। अच्छा, ये राइट द इंट्रोडक्शन है, ये गलत लिखा हुआ है। ये मैं कह रही हूँ ये क्या लिखा है? ओके 2 सेंटेंसेस में इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। एक तो आप लिख सकते हो द प्रोसेस इलस्ट्रेट्स हाउ कैंड पियर्स आर प्रोड्यूस्ड, आप ये लिख सकते हो। या आप लिख सकते हो द प्रोसेस इलस्ट्रेट्स द स्टेजेस इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ कैंड पियर्स। ये समझ आ गया आपको? कोई भी एक सेंटेंस पिकअप कर लो। और कौन सा पिकअप करोगे, फर्स्ट के सेकंड? फर्स्ट। ओके, सेकंड क्यों नहीं?
सेकंड ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया ही हुआ है. अच्छा देखें क्वेश्चन में, shows the multi-stage production of pears as canned fruit, ये दिया हुआ है, वो तो डिफरेंट है. मल्टी स्टेज मतलब स्टेज मेंशन किया हुआ है इसीलिए स्टेजेस. हाँ हाँ, पर मैं तो सेकंड चुनूंगी, क्योंकि ना मैं आपको एक मैम बात सेकंड। समझाती हूँ क्यों. मैं बताती हूँ क्यों. फर्स्ट और सेकंड दोनों चुन सकते हो, दोनों करेक्ट हैं. व्हाई आई विल गो फॉर द सेकंड इज बिकॉज प्रोसेस में ना 150 वर्ड ले जाना एक एफर्ट है. कई बच्चों ने मेरे से प्रोसेस चेक कराया है लिख के, पूरा करेक्ट होता है और 137 वर्ड्स का 140 वर्ड्स का होता है. तो उसमें ना वर्ड काउंट 150 से ऊपर पहुंचाना एक आर्ट है, आर्ट. ओके, ये वाला आर्ट भी आपको सीखना है. ठीक है, आपको ये सीखना है ऐसे प्रोसेसेस में कि कम से कम 150 वर्ड कैसे जाना है. समझ आ गया? तो उसमें आप थोड़ा लंबा वाला सेंटेंस चुनोगे तभी बात बनेगी ना. ठीक है, समझ आ गया बच्चे सबको? वैसे दोनों करेक्ट हैं, कोई भी कर सकते हो. अब आ जाओ ओवरऑल पे. ओवरऑल में आप टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स एंड कंटिन्यू विद द फर्स्ट एंड लास्ट स्टेप करोगे. देखो ये ओवरऑल द प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ 14 मेन स्टेप्स. The process begins with the harvesting of olives from the trees and ends with the dispatch of final canned olive oil to the markets. नहीं तो ये complex sentence बना सकते हो. Overall, the process consists of 14 main steps, from the initial harvesting of the olives from the trees to the eventual dispatch of the olive oil cans to the marketplace for sale. ये समझ आ गया सबको? Yes या yes बोल दो. यस मैम। नो भी बोल सकते हो, ऐसी बात नहीं है. ठीक है, ओके. तो ये आपका सैंपल आंसर है, इंट्रोडक्शन एंड देन द ओवरव्यू. ठीक है, और फिर हम आ जाते हैं बॉडी पे. ठीक है, अब इन द फर्स्ट स्टेज जो रेड में मैंने करा है ना, वो तो है लैंग्वेज ऑफ सीक्वेंसिंग, और जो मैंने बोल्ड करके अंडरलाइन करा है वो है पैसिव वॉइस. ये दो चीजें आपको चाहिए प्रोसेस ग्राफ में अच्छा बैंड स्कोर लेने के लिए. ठीक है, राइट? अब देखो, अब पढ़ो. इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ द प्रोसेस राइप pears आर पिक्ड बाय हैंड. आर पिक्ड, आर पिक्ड में बी की फॉर्म कौन सी है? आर. आर. और पिक्ड में पिक्ड क्या है? थर्ड फॉर्म ऑफ Verb. ठीक है. सो राइप pears आर पिक्ड बाय हैंड एंड देन ट्रांसपोर्टेड टू अ फैक्ट्री. क्योंकि उसी सेंटेंस में ट्रांसपोर्टेड है थर्ड फॉर्म, आर एक बार आ चुका है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है. ये बात समझ आ गई आपको? आप लिख भी सकते हो राइप pears आर पिक्ड बाय हैंड एंड देन आर ट्रांसपोर्टेड टू अ फैक्ट्री. ठीक है, समझ आ गया ये? Yes, ma'am. Okay, ma'am. In the factory the pears are washed. Are washed. पैसिव वॉइस समझ आ गई? बी की फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. एंड देन Yes. चेक्ड फॉर क्वालिटी. फिर हमने आर दोबारा नहीं लिखा, आर चेक्ड नहीं लिखा दोबारा, देन चेक्ड फॉर क्वालिटी लिख दिया. ठीक है. नेक्स्ट, द डिफेक्टिव pears आर टेकन अवे एंड द गुड ones आर cooled in a storage at a specific temperature. अब वहां पे सॉर्टिंग होती है. डिफेक्टिव pears जो है टेकन अवे है. देखें एक बार पिक्चर को. क्वालिटी चेकिंग है ना. क्वालिटी चेकिंग का क्या मतलब है? अभी क्वालिटी जो अच्छी क्वालिटी है उसको रख लो और बाकियों को क्या करो? निकाल दो. इसका ये मतलब निकाला है. ठीक है. सो द डिफेक्टिव pears आर टेकन अवे and the good ones are cooled in a storage at a specific temperature. In the subsequent step, the pears are weighed and graded. उनको weigh करते हैं, उनको grade करते हैं into different grades. समझ आ गया? बताओ. Yes, ma'am. Yes, Okay, ma'am. Yes, into ma'am. different grades. Following this, the pears are peeled, are peeled, peel किए जाते हैं, and then sliced. And after that, their cores are also removed. Are removed. सारा पैसिव और सब सीक्वेंसिंग की लैंग्वेज समझ आ गई? Yes, ma'am. Yes, In, ma'am. in the next step, the cored and sliced pears are put in cans, are put, and sealed before being cooked.
ठीक है. This also sterilizes the cans filled with pears. After this, the cans are labeled and stored and are finally dispatched to the supermarkets for sale. अब ये समझ आ गया आपको पैसिव वॉइस? Yes. Yes, ma'am. सुपरफिशियली मत बोलना, नहीं समझ आया तो नहीं बोल देना कि नहीं अभी नहीं समझ आया. समझ आ गया? Yes, ma'am. ओके. Yes, ma'am. अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स को टच कर लेते हैं इसमें. अब आपने अपना ग्राफ जो है पैसिव वॉइस मास्टर कर ली. जब तक आपकी पैसिव वॉइस मास्टर नहीं ना होती, आप कॉम्प्लेक्स का वो पंगा नहीं लोगे, सिंपल में लिखोगे. वंस योर पैसिव वॉइस की एक भी गलती नहीं होती ना ग्राफ में, फिर आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सीख लेना इसमें डालने के लिए. ठीक है. एंड उसमें क्या है, वेरी इजी टास्क है. अब जो भी सेंटेंस है जिसके एंड में वर्ब नहीं है, वर्ब क्या होता है? वर्ब इज ए डूइंग वर्ड. किसी भी ग्राफ के एंड में वर्ब नहीं है, सेंटेंस के एंड में वर्ब नहीं है. जैसे ये एग्जांपल लो, पियर्स आर वॉश्ड एंड पियर्स आर ट्रांसपोर्टेड टू ए फैक्ट्री. पियर्स आर वॉश्ड, ये वॉश्ड क्या है? वर्ब है ना. ठीक है. फिर पियर्स आर ट्रांसपोर्टेड टू ए फैक्ट्री and add what happens in the next phase using a connector like where. अब ये pears are washed किस पे end हो रहा है? verb पे. Pears are transported to a factory. factory क्या है? verb है कि noun है? Noun. noun है, noun. तो अब जो भी sentence verb में नहीं end हो रहा, उसमें आप passive कैसे बना सकते हो? factory वाले में the pears are taken to the factory where they are washed and checked for quality. अब फैक्ट्री में ले गए, वहां वॉश किया, चेक किया क्वालिटी के लिए. पियर्स आर पुट इन कैंस. अब देखो, फैक्ट्री है हमारा नाउन. फैक्ट्री नाउन है ना. नाउन जब वर्ब पे नहीं एंड होता, फैक्ट्री है, तो हम वेयर कर दिया बाद में, वेयर दे आर वॉश. तो हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दिया. पहले हमें सेंटेंस आइडेंटिफाई करना है जिसके एंड में वर्ब नहीं है. अगर वर्ब है तो फिर ये गलत हो जाएगा. अगर नाउन है तो फिर वेयर दे आर वॉश्ड एंड चेक्ड फॉर क्वालिटी आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया. ये समझ आ गया आपको? Yes, ma'am. ओके, वेरी गुड. द पियर्स आर पुट इन कैंस. अब ये कैंस क्या है? नाउन है कि वर्ब है? Noun. नाउन. फिर हमने उसके बाद विच आर देन सील्ड, ये कॉम्प्लेक्स बना दिया, यहाँ पे विच कर दिया. अगर प्लेस होती तो वेयर कर देते, अगर कोई चीज है तो उसमें विच कर दिया. ठीक है. विच आर देन सील्ड. समझ आ गया? ठीक है. अब उसने अगले पेज पे होमवर्क ये दिया. आज मैं डिफरेंट होमवर्क दे रही हूँ. ये मैंने पिछली बार बच्चों को कराया हुआ है होमवर्क. ठीक है. अब ये आपको पैसिव वॉइस अच्छे से समझ आ गई? बताओ. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब मैंने आपको आज अपनी बुक के जो प्रोसेसेस हैं वो शेयर करने वाली हूँ अभी. ठीक है. और एक प्रोसेस ग्राफ आपको होमवर्क में देने वाली हूँ. ठीक है. आप सबने मुझे वो लिख के भेजना है और किसी ने भी 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगाने हैं. Okay, ma'am. ठीक है. ये आपको अपने आप अपने लिए यू हैव टू बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ. क्योंकि यहाँ पे अगर आप 25, 30, 40 मिनट्स में ग्राफ लिखोगे ना, एग्जाम में नहीं लिखोगा. यू हैव टू प्रैक्टिस राइटिंग ग्राफ विद इन 20 मिनट्स. ठीक है. गलतियां हो जाए कोई बात नहीं, पर 20 मिनट के अंदर अंदर वो गलतियां कम करनी है आपको प्रैक्टिस के साथ, लिख लिख के. ठीक है. राइट. चलो फिर अब बताओ, थोड़े आपको ग्राफ्स दिखा दूं. बुक में कौन कौन से हैं दिखा देती हूँ. अच्छा, नेचुरल ग्राफ भी, नेचुरल प्रोसेस भी आता है, मैं आपको दिखाती हूँ अभी. 1 मिनट. ग्राफ बुक दिखने लग गई आपको? Yes, ma'am. अच्छा, आपको ना ट्रांसलेट करके देखना है कि कोई चीज अपने आप हो रही है कि आप कर रहे हो. ठीक है. अब जैसे ये है, चीज का प्रोसेस है सॉफ्ट चीज बनाने का, अभी 2 बार आ चुका है. इसमें मुझे ये बताओ कि सॉल्ट तो आप ऐड कर रहे हो. अब जो इवेपोरेशन है ये आप कर रहे हो कि हो रही है?
मैम हो रही हो है। रही है। जब हो रही है ना फिर पैसिव वॉइस नहीं आएगा। आप कर रहे हो कोई चीज तो पैसिव वॉइस आएगी। ठीक है। सो इवेपोरेशन टेक्स प्लेस, इवेपोरेशन इज डन नहीं, आप नहीं कर रहे हो। ठीक है। हीटर, वो इवेपोरेशन चैम्बर में आप भेज रहे हो, पर इवेपोरेशन अपने आप हो रही है। ठीक है। तो ये थोड़ा थोड़ा देख लेना। बाकी पैसिव वॉइस भी है। अब ये क्या है, लाइफ साइकिल और सैमन फिश। सैमन जो फिश है, ये जो इसके अंडे देती है, अंडे दे रही है रीड्स के बीच में और स्मॉल स्टोन्स के बीच में, ये अंडे देना ये सब नेचुरल प्रोसेस है कि मैन मेड प्रोसेस है? नेचुरल। नेचुरल। ठीक है। तो इसमें पैसिव ज्यादा नहीं आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। आज आप सारे, विल यू गो थ्रू दीज ग्राफ्स? वैसे मैंने 2 दिन रखे हैं, थर्सडे और फ्राइडे। आपके वेडनेसडे कल मैं स्पीकिंग करा रही हूँ, इंट्रो क्वेश्चंस। आर यू विलिंग टू डू द इंट्रो क्वेश्चंस विद मी? पिछली बार फायदा हुआ था आपको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके। तो कल इंट्रो सेट्स कुछ और करा दूंगी 15-20, फिर नए क्यू कार्ड शुरू हो जाने आने। अच्छा, आप सबको, किसी को भी कोई नया क्यू कार्ड पता चले, क्योंकि 9 जनवरी को जो पेपर है ना, उसकी स्पीकिंग शुरू हो रही है 2 तारीख से। ठीक है। और 2 तारीख से नए क्यू कार्ड हमें पता चलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। तो जिसको कोई भी पता चले उसको प्लीज ग्रुप में शेयर करना है। ठीक है मैम। हाँ, आप शेयर करोगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये वाला नया ऐड हुआ है या पुराना है, एंड वी विल मेक यू डू दोस क्यू कार्ड्स। ठीक है। 2 तारीख से शुरू हो जाने हैं एग्जाम होने। 2 तारीख से आपको भी पता चलना लग जाएगा कौन कौन से नए हैं। बाकी मेरे सोर्सेज हैं और जिनसे मुझे पता चलता है, उनके एक डेट पे 200 बच्चा पेपर देता है। इमेजिन। ओके। सारे इकट्ठे हो जाते हैं ग्राफ, जो जो नए ऐड होते हैं। यहाँ से तो हमें थोड़े थोड़े पता चलते हैं ना, फिर अल्टीमेटली वहां से सारे पता चल जाते हैं। ठीक है। बट दैट हैपेंस ओनली आफ्टर द फर्स्ट टेस्ट डेट इज ओवर। तभी मैं बच्चों को कहती हूँ कि फर्स्ट 9th मत भरो, 9th 2nd या 3rd डेट भरो। 3rd भरवाती हूँ मोस्टली। ठीक है। अच्छा चलो, अभी ये वाला तो है, ये तो मैनमेड प्रोसेस है, कैचिंग ऑफ फिश। ये इस तरह के प्रोसेस भी आते हैं, रेन वाटर को कलेक्ट करना एंड कन्वर्टिंग टू ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है। ये सारे आप गो थ्रू करना, और मैं आपको एक ग्राफ लिखने का देती हूँ अभी होमवर्क में। उसी फाइल के एंड में होमवर्क वाला ग्राफ होगा जिसका मैंने आंसर नहीं डाला होगा। ठीक है। इज दैट ओके विद ऑल ऑफ यू? यस मैम। तो फिर क्लास अभी एंड करूं और होमवर्क डाल दूं, आप लिख के भेजो। यस मैम। ठीक है। यस चलो, मैम। ओके। आज क्लास थोड़ी छोटी रही, पर मैंने पैसिव वॉइस आपको अच्छे से कराया है, इत्मीनान से, प्यार से। यस आपको मैम। पैसिव वॉइस आ गई सबको? कोई यस डाउट्स मैम। है? नो मैम। नहीं। हाँ चलो ठीक है। ओके थैंक यू ओके। मैम। थैंक यू बाय मैम। बाय 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 मैम। बाय।